सवाली को तुम्हारे दर से महरूमी नहीं होती, सवाली को तुम्हारे दर से महरूमी नहीं होती। ये चर्चा आम है ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी। जमाने भर का ठुकराया हुआ इस दर पे आया हूँ, जमाने भर का ठुकराया हुआ इस दर पे आया हूँ। मदद कुन हिंद के राजा मोइनुद्दीन अजमेरी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के 786वें उर्स मुबारक के मौके पर ज़ायरीन का उमड़ा हुआ ये हुजूम बता रहा है कि उनके दिल में अपने ख्वाजा की कितनी अकीदत और मोहब्बत है। ये मंजर है गरीब नवाज की दरगाह का, और ये उमड़ा हुआ लोगों का हुजूम अपने गरीब नवाज के कदमों में हाजिरी देने के लिए जा रहा है। यूं तो हिंदुस्तान के कोने कोने से ज़ायरीन अजमेर शरीफ आते हैं, लेकिन जो लोग लखनऊ और बनारस से आते हैं वो किस किस रास्तों से होकर आते हैं और रास्ते में किन किन बुजुर्ग के मज़ारात पड़ते हैं। ये है लखनऊ का मशहूर चारबाग रेलवे स्टेशन, और इस स्टेशन के बिल्कुल बराबर में ये दरगाह है हजरत खम्मन पीर शाह बाबा की। हजरत खम्मन पीर शाह बाबा की दरगाह का ये बैरूनी मंजर बड़ा खुशनुमा मंजर है। अकीदतमंद यहाँ भी हाजिरी देते हैं। ये हजरत खम्मन पीर शाह बाबा का मज़ार पाक। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से हमारे मुल्क को हर चीज़ से माला माल किया है, उसी तरीके से बुजुर्गों से भी माला माल है। ये है लखनऊ का वो तारीखी दरवाज़ा जो लखनऊ की पहचान है और जिसको कभी नवाबी ज़माने में तामीर किया गया था, और यहीं पर कई और तारीखी इमारतें। ये लखनऊ की भूल भुलैया, और ये है इमाम बाड़ा। यहाँ से ज़ायरीन लखनऊ के एक और बुजुर्ग हजरत शाह मीना की दरगाह पर जाते हैं। ये है हजरत शाह मीना का दरबार। ये मज़ार पाक हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह दुआएं करते हुए ज़ायरीन। ये है समा खाना जहाँ महफिल कव्वाली होती है, और ये बैरूनी मंजर। यहाँ से लोग लखनऊ से कुछ दूर बाराबंकी से आगे एक और बुजुर्ग हजरत हाजी वारिस अली शाह के मज़ार पर जाते हैं। ये है हजरत हाजी वारिस अली शाह का मज़ार पाक जो सिलसिला वारिसिया के बानी हैं और बुजुर्गों में अपनी मिसाल आप हैं। ये आस्ताना है हजरत हाजी वारिस अली शाह का। अकीदतमंद आस्ताने के अंदर नजराने अकीदत पेश करने के लिए जा रहे हैं। यहीं हमारी मुलाकात हुई तस्लीम आरिफ से। ये है हाजी वारिस अली शाह का
روئے مبارک اور یہ مزار پاک پر زائرین اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہاں سے حاضری دینے کے بعد لوگ آگے کی طرف آتے ہیں اور راستے میں بریلی شریف پڑتا ہے۔ یہ ہے اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اعلی حضرت کے مزار کے بعد زائرین خانقاہ نیازیہ جاتے ہیں۔ یہ ہے خانقاہ نیازیہ، جہاں حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ کے مزار ہیں۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک پر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے زائرین یہ چادر پوشی کی جا رہی ہے۔ بریلی کے محلہ خواجہ قطب میں یہ درگاہ شریف، جن کو ماننے والے لا تعداد پوری دنیا میں موجود ہیں۔ خانقاہ نیازیہ بریلی شریف، یہ دیکھیے خانقاہ نیازیہ کا باہر سے لیا ہوا ایک شاٹ۔ یہاں سے نزدیک ہیں بدایوں شہر کے وہ مزارات جن کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑی دور دور سے آتے ہیں۔ یہ ہے حضرت بدر الدین شاہ ولایت، جن کو عرف عام میں لوگ چھوٹے سرکار کہتے ہیں۔ ان کا یہ داخلی دروازہ، بدایوں شریف کی یہ درگاہیں بہت مشہور ہیں۔ یہ ہے حضرت بدر الدین شاہ ولایت چھوٹے سرکار کا مزار پاک۔ فاتحہ خوانی کرتے ہوئے زائرین، اور یہ مزار پر پڑی ہوئی چادر اور گلاب کے خوشنما پھول تقریباً 785 سال پہلے یہ بزرگ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، پردہ فرما گئے، لیکن ان کے چاہنے والے آج بھی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اور انہی کے بڑے بھائی حضرت سلطان العارفین، جن کو لوگ بڑے سرکار بھی کہتے ہیں، یہاں حاضری دینے کے بعد اب ہم حضرت سلطان عارفین کی درگاہ میں آ گئے۔ یہ ہے حضرت سلطان عارفین بڑے سرکار کی وہ مقدس درگاہ، جہاں رمضان المبارک میں عرس ہوتا ہے۔ حضرت بدر الدین شاہ ولایت کا عرس 21 اور 22 رمضان کو، اور حضرت سلطان عارفین کا عرس 24 اور 25 رمضان کو ہوتا ہے۔ بدایوں، علم کا گہوارہ، بزرگوں کی سرزمین، نظام الدین اولیاء کا وطن، یہ ہے حضرت سلطان العارفین بڑے سرکار کی درگاہ کا اندرونی منظر۔ مزار پر پڑی ہوئی چادریں، عقیدت مند اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء یہیں بدایوں میں ہی پیدا ہوئے، اور آپ کی تعلیم و تربیت بھی یہیں ہوئی۔ بدایوں شہر کو بڑی فوقیت حاصل ہے۔ تیری بڑی مثال ہے شہر بدایوں، ولیوں سے مالا مال ہے شہر بدایوں۔ یہ دیکھیے حضرت نظام الدین اولیاء کے والد ماجد حضرت سید احمد بخاری کا مزار پاک، اور اس کے پیچھے یہ تالاب جس کو ساگر تال کہتے ہیں، اور تالاب کے بالکل کنارے پر بنی ہوئی یہ درگاہ بدایوں کے محلہ کھیڑا نوادہ میں آباد ہے۔
सज्जादा नशीन ज़ायरीन के साथ दुआ फरमाते हुए ये है दरगाह कादरी। हजरत अब्दुल कादिर और हजरत अब्दुल कदीर साहब की ये दरगाहें जो सिलसिला कादरिया में अपनी मिसाल आप हैं और आपको महारारा शरीफ से निस्बत है। अभी पिछली साल ही आपका 100 साला जश्न बदायूं में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हजरत अब्दुल कादिर बदायूनी का ये मज़ार पाक, जिनके बारे में आला हजरत ने फरमाया, ऐ इमामुल हुदा मुहिब्बे रसूल, दीन के पेशवा मुहिब्बे रसूल, तेरे ऊपर रसूल का साया, मुझ पे साया तेरा मुहिब्बे रसूल। ये देखिए हजरत मखदूम कलियरी का दरबार, जो उत्तर प्रदेश के जिला हरिद्वार में तहसील रुड़की से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर कलियर गांव में नहर के किनारे पर आबाद है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के भांजे हजरत साबिर पाक मखदूम कलियरी, जिनका नाम अली अहमद अलाउद्दीन है और जिनका सब्र पूरी दुनिया में मशहूर है, हजरत मखदूम साबिर कलियरी के मज़ार पाक पर हाजिरी देने के बाद ज़ायरीन दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये देखिए बसों से आते हुए ज़ायरीन, ये बस कलियर से दिल्ली की तरफ आ रही है। ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं। और ये है हजरत मटकी पीर शाह बाबा की दरगाह, जहां कुछ देर ठहरने के बाद ज़ायरीन हजरत मटकी पीर शाह बाबा को सलाम अकीदत पेश करते हैं। इसके बाद लाल किला मैदान में ये बसें रुक जाती हैं। ये लाल किला की एक बुर्ज और रुकी हुई बसें, ज़ायरीन, छोटे छोटे बच्चे, मस्तूरात। उसके बाद ये अकीदतमंद गरीब नवाज के आपके पहले खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में हाजिरी देने के लिए जाते हैं। ये है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का बाहरी दरवाज़ा, जहाँ से लोग दरगाह में जाते हैं। क्योंकि औरतों को अंदर जाने की ममानियत है, इसलिए वो जालियों से आपका दीदार कर लेती हैं। ये है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह का दिलकश मंजर। फूलों की चादर मज़ार पाक पर पड़ी हुई, ज़ायरीन अपनी बारी का इंतजार करते हुए और कदम बोसी करता हुआ एक नौजवान। कांच का बहुत ही खूबसूरत काम है दरगाह के गुंबद के नीचे। बहुत ही अच्छा मंजर है दरगाह का। जी चाहता है कुछ देर देखते ही रहिए। दरगाह के ये सुतून दुआएं करते हुए ज़ायरीन
आपकी दरगाह आज भी कच्ची मिट्टी की है और उस पर ये चादर डाल दी गई है। जो लोग अजमेर जाते हैं वो इस दरगाह पर जरूर हाजिरी देते हैं। ये देखिए दरगाह का बैरूनी मंजर, बहुत ही खुशनुमा मंजर है। यहाँ से जायरीन दिल्ली के दूल्हा हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में आते हैं। ये है हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की दरगाह के बाजार का मंजर। फूलों और चादरों की दुकानें, अंदर जाने के लिए ये दरवाजा, दुकानों पर रखी हुई फूलों की चादर और शीरीनी। और ये है वो बावली जिसको निजामुद्दीन औलिया ने तामीर करवाया था। कहते हैं कि जब ये बावली तामीर हो रही थी तो बादशाह ने तेल बंद कर दिया था, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने हुक्म दिया कि पानी जलाओ, और इस बावली का पानी जलने लगा था। ये है हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। लेकिन आपकी दरगाह पर जाने से पहले आपके चहीते मुरीद और तूतिए हिंद का खिताब पाने वाले हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह। गोरी सोवे सेज पर सो मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने तो शाम भई चौडेर, छाप तिलक सब छीन ली मुंह से नैना मिला के, आज रंग है हेमा रंग है री। हिंदी उर्दू के कलाम बखूबी आपने लिखे और आपके कलामों में वो चाशनी थी कि सुनने वाला दंग रह जाता था। हजरत निजामुद्दीन औलिया आपसे बेहद प्यार करते थे। ये है हजरत अमीर खुसरो की दरगाह का अंदरूनी मंजर, मज़ार पाक। बड़ा ही खूबसूरत काम है दरगाह के अंदर, अरबी की आयत लिखी हुई। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जाने से पहले सभी लोग हजरत अमीर खुसरो की दरगाह में हाजिरी देते हैं। बहुत ही खुशनुमा जालियां। और ये है हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। इसके बराबर में बिल्कुल लगी हुई एक मस्जिद जो बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। ये देखिए दरगाह का गुंबद। जायरीन का हुजूम अपनी बारी का इंतजार करते हुए। अब यहाँ से ये काफिला अजमेर की तरफ रवाना होता है। ये गरीब नवाज के चाहने वाले अकीदतमंद दिल्ली से अजमेर की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये बस, इसके सामने एक बैनर लगा हुआ है जिस पर जायरीन अजमेर लिखा हुआ है। रास्ते में जयपुर से पहले का ये मंजर। और अब जायरीन अजमेर की मुक़द्दस ज़मीन पर कदम रख चुके हैं।
یہ ہے اجمیر کا ریلوے اسٹیشن، جہاں ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ ٹرین کے ذریعے اجمیر آتے ہیں اور ٹرین سے اترنے کے بعد درگاہ شریف کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ہے ریلوے اسٹیشن کے بالکل سامنے بنا ہوا گھنٹہ گھر، اور یہ دیکھیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک۔ یہ اونچائی سے لیا ہوا شاٹ۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز کا دھولا گنبد، جس کے اوپر سونے کا کلش۔ یہ اجمیر شہر کا دیکھیے کتنا خوبصورت منظر ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے اجمیر میں آ کر زائرین اجمیر کو۔ اور یہ ہے دہلی دروازہ، جہاں پر یہ شوبراج ہوٹل، اس کے تھوڑی دیر کے بعد دہلی دروازہ آ جائے گا، جہاں سے درگاہ بازار شروع ہوگا۔ زائرین کی یہ بھیڑ درگاہ شریف کی طرف جاتی ہوئی، یہ دیکھیے دہلی دروازہ۔ غریب نواز کے چاہنے والوں کا یہ ہجوم اپنے خواجہ کے قدموں میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ درگاہ بازار 786 میں عرس کا یہ منظر۔ بوڑھے بچے جوان عورتیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی سچی عقیدت کے ساتھ غریب نواز میں حاضری دیتے ہیں۔ یہ سجی ہوئی ایک دکان، یہ ٹوپیاں سجی ہوئی ایک دکان میں۔ یہ دیکھیے کتنا حسین منظر ہے۔ غریب نواز کے چاہنے والے کس جوش و خروش کے ساتھ غریب نواز کی درگاہ میں جا رہے ہیں۔ اور یہ ہے وہ مشہور بلند دروازہ، جہاں سے درگاہ شریف بالکل صاف نظر آتی ہے۔ یہاں سے کچھ ہی دیر کے بعد چھوٹی اور بڑی دیگیں ہیں۔ یہ دیکھیے بلند دروازہ۔ رات کو اس بلند دروازے کی رونق دوبالا ہو جاتی ہے جب اس پر لائٹ کی جاتی ہے۔ 786 صاف لکھا ہوا، یہ غریب نواز کا 786واں عرس ہے۔ یہ صحن چراغ اور یہ بڑی دیگ۔ یہاں چڑھنے کے بعد کئی سیڑھیاں ہیں دیگ تک جانے کے لیے، اور یہ دیگ کا اندرونی منظر۔ خواجہ کے چاہنے والے کوئی روپیہ، کوئی پیسہ، کوئی نوٹ، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی گیہوں، کوئی دلیا، کوئی شکر، کوئی ناریل، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس دیگ کے اندر ڈالتے ہیں۔ اور اس کے بالکل بائیں طرف چھوٹی دیگ ہے۔ یہ دیکھیے چھوٹی دیگ جو عرس کے دوران کئی بار پکائی جاتی ہے۔ غریب نواز کے چاہنے والے اس دیگ کا دلیا کھا کر خوش ہو جاتے ہیں اور تبرک اپنے گھروں کے لیے بھی لاتے ہیں۔ اس دیگ کا پکا ہوا دلیا بطور تبرک اجمیر میں ہر دکان پر ملتا ہے۔ یہ ہے وضو خانہ۔ درگاہ شریف میں جانے سے پہلے یہاں پر لوگ وضو بناتے ہیں۔ وضو بناتے ہوئے زائرین، اور بیچ میں خوشنما فوارہ۔ یہ چادر لے جاتے ہوئے زائرین۔ یا خواجہ غریب نواز صاف لکھا ہوا ہے۔
और ये काले रंग का जो बोर्ड दिख रहा है, इस पे साफ लिखा हुआ है 786 उर्स मुबारक। ये दालान जहां जायरीन ठहरे हुए हैं। ये देखिए रात का खूबसूरत मंजर, बुलंद दरवाजा कितना चमक रहा है। बहुत ही हसीन मंजर है ये अजमेर का। दरगाह बाजार पूरी तरह सजा हुआ और दरगाह बाजार में ये हाजरीन की भीड़ अपने ख्वाजा से अकीदत का इजहार करने के बाद ये लोग वापस आ रहे हैं। बुलंद दरवाजा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही आलीशान मंजर बुलंद दरवाजे का। 786 साफ चमक रहा है और ये सोने की पत्तियां गरीब नवाज के धौले गुंबद के ऊपर और रात को सजा हुआ मज़ार पाक। ये है अजमेर का वो मशहूर तालाब जिसको अना सागर कहते हैं। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए तो सबसे पहले आपने इसी तालाब के किनारे क़याम किया। गरीब नवाज ने अपने एक मुरीद को इसी तालाब पर अपना कासा लेकर भेजा। कहा कि जाओ पानी से कहना ख्वाजा बुला रहे हैं, और सारे तालाब का पानी उस कासे में आ गया था। ये करामत है गरीब नवाज की। ये है गौस पाक का चिल्ला मुबारक जो तारागढ़ के रास्ते में पड़ता है। गरीब नवाज की दरगाह से साफ मालूम होता है ये तारागढ़। ये देखिए नीचे से लिया हुआ एक शॉट। पहाड़ियों पर गौस पाक का चिल्ला दिख रहा है। अजमेर का खूबसूरत मंजर और बीच में ये दरगाह का मंजर। तारागढ़ की पहाड़ी पर जाते हुए जायरीन। ये सीढ़ियां हैं 2.5 दिन के झोपड़े में जाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत इमारत है। ढाई दिन का ये झोपड़ा। यहीं से तारागढ़ की चढ़ाई शुरू होती है। देखिए तारागढ़ की पहाड़ी। देखिए ये लोग तारागढ़ की तरफ जा रहे हैं और ये वो मुकाम है जहां एक मशहूर पत्थर है जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ नमाज अदा कर रहे थे आप और ये पत्थर जादू से फेंका गया था, तो आपने अपनी दोनों उंगलियां लगाकर इसको रोक लिया था। कहा था कि अगर जादू का भेजा हुआ है तो वहीं रुक जा और अगर खुदा ने भेजा है तो आजा। और ये पत्थर वहीं रुक गया था। ये वही पत्थर है। यहाँ भी लोग जाते हैं और आपके घोड़े ये टखनों का ये निशान भी इस पर मौजूद है। बहुत ही दुश्वार रास्ता है तारागढ़ पर जाने के लिए, लेकिन अकीदतमंद तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये तारागढ़ का वो किला है और इस किले के ऊपर दरगाह है हजरत सैयद हसन मीरा
सिंह सवार की। यहाँ भी देगे हैं। देखिए एक देग, इस पर जाल पड़ा हुआ है। तारागढ़ का ये मंजर आप देख रहे हैं। जिस तरीके से गरीब नवाज की दरगाह के अहाते में 2 देगे हैं, वैसे ही तारागढ़ के किले में ये 2 देगे हैं।